Good morning, sir. Good morning. With your permission, may we start, sir? Yes, I think we should. Okay, thank you so much, sir. Go ahead, Piyush. Good morning. I, Piyush, welcome you all on behalf of entire CIMP family for today's function. Before we start, I take this opportunity to brief our honorable guest of the day about our institute, a brainchild of our Honorable Chief Minister, Shri Nitish Kumar, who also happens to be the chairman of the Board of Governors of the institute. CIMP was established in 2008 as an autonomous institute on the lines of IIMs with the active support and help from the government of Bihar to resurrect the educational glory of Bihar. Recently, CIP has secured position in the top 125 management institutions in the country under the NIRF ranking 2021 conducted by Ministry of Education, Government of India. I now take this opportunity to welcome our honorable guest, the legend, Mr. Vinaysheel Gautam. Sir is the chairman, DKIF, vice chairman, Foundation for Organizational Research and Education. May I now invite Professor Dr. Rana Singh, Director CIMP, to deliver the welcome address. Thank you so much. It's indeed my pleasure, privilege, honor, and delight to welcome the legend that is known as Dr. Vinaysheel Gautam. He is a man who is known for excellence in the domain of management education and is credited to be the founder director of IIM Kozhikode and the first head of management department IIT Delhi, and is also the chairman of DK International Foundation and has been senior advisor in KPMG. He has also contributed to various top-notch high-level bodies of central government, multiple state governments, and has given consulting to multiple governments within the country and outside the country. It has been my privilege, honor, and delight to have been receiving his guidance, patronage, blessings, and consistent motivation and never-ending source of inspiration in the domain of management education. I really feel delighted and elated today to welcome you at Chandragupta Institute of Management, much as I would have loved to hosted you offline, but due to certain challenges and compulsions, it's my pleasure to host you online on this auspicious day of the National Education Day, which is earmarked to celebrate and to focus on the various challenges, perspectives, dimensions, and looking forward to the roadmap ahead. So we look forward to your words of wisdom. Over to you, sir. With a big round of applause, please. ऐसे सहृदयपूर्ण स्वागत के लिए साधुवाद। निमंत्रण तो बहुत होते हैं देश विदेश, लेकिन अपने शहर, अपने घर के निमंत्रण की कीमत कुछ अधिक ही होती है, क्योंकि मैं उन लोगों में नहीं हूं जिनको अपने पटना के संपर्क को बताते हुए हिचक होती है। मैं पटना में पैदा हुआ और यद्यपि डिग्री मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली, मैंने उसकी परीक्षा सेंट जेवियर्स पटना से दी थी और पटना में मैं 4 साल पढ़ा भी। इसलिए मेरे श्रेय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जन्मभूमि और कर्मभूमि को है। उसे मेरा नमस्कार। I have been invited to talk on the national education policy of 2020, the way forward. And I think it's important to make it brief, to the point, because I am of the view that I'm speaking to the cream de la cream of the Indian education system and a group of students who will one day occupy that position, hopefully nationally and internationally. सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में आती है वो ये कि इस देश में
पॉलिसीज की कमी नहीं है, इस देश में नियत की कमी नहीं है। सच पूछिए तो इस देश में कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन समवेयर कोई व्यक्ति खड़े हैं हॉल में और कोई भाषण दे रहे हैं, पिछले 5 रो के पीछे उनको बैठने को निवेदन किया जा सकता है। वो लगातार बोले ही जा रहे हैं वहां पर। जब मैं काम करता हूं तो मैं उसको साधना मानता हूं, और हर किसी को कुछ मानसिकताएं होती हैं, और आप यदि घंटे भर के लिए मेरी इस मानसिकता का स्वीकार कर सकें तो मुझे इससे संतोष होगा, क्योंकि मैं डिस्टर्ब होना नहीं पसंद करता हूं। दिस इज नॉट जस्ट अनदर लेक्चर। एवरी टाइम आई कम्युनिकेट, मैं अपने अंतःकरण से अपने ऑडियंस को छूने की कोशिश करता हूं, और जैसा आप मेरे परिचय से जानते होंगे, यदि मैं करता हूं तो कुछ मन से करता हूं या नहीं करता हूं। इसलिए आपसे केवल एक ही निवेदन है कि लेट्स नॉट मेक इट अ क्लब एनवायरनमेंट, लेट्स मेक इट अ सीरियस चॉइस, बिकॉज आपने अपने समय का 1 घंटा निकाला है, मैंने भी निकाला है, तो इसका कुछ निचोड़ होना चाहिए। आशा है मेरा निवेदन आप स्वीकार करेंगे। मैं जिस बात को कह रहा था वो ये कि इस देश में नीतियों की कमी नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार माध्यमों के ड्रमिंग अप को एक तरफ आप कर दीजिए तो इंडियाज रैंक अमंग्स द पुअर नेशंस, इंडियाज रैंक in malnutrition, India's rank in many of these international ranking indices are known to you. मैं उसका हवाला नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि उससे माहौल बिगड़ता है, और न मैं स्वभाव से नेगेटिव आदमी हूं, ना ही मैं मानता हूं कि भारत के इन मानदंडों का कोई खास महत्व है यदि हम अपनी शिक्षा को ठीक से आगे बढ़ा सकें। तो मैं जो दूसरी बात कहने लगा कि सभी विकास के मानदंडों की जड़ में शिक्षा है, और मैं शिक्षा को मैलन्यूट्रिशन से भी ऊपर मानता हूं, क्योंकि मैलन्यूट्रिशन को सुलझाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। जब मैं नीति को देखता हूं और किसी न किसी व्याज से भारतीय शिक्षा नीति के नीति निर्धारण में मैं 1985 से लगा रहा हूं, न कहने का समय है न उसकी आवश्यकता है कि किन सोपानों से शिक्षा नीतियों का निर्धारण गुजरता है, लेकिन इस शिक्षा नीति सरकार जिसकी भी हो, इस पार्टी की हो उस पार्टी की हो, नेता यह हो या वह हो, इस देश को अच्छा नेतृत्व मिला है। गलतियां बहुतों से हुई हैं, लेकिन आवश्यकता यह है कि हम गलतियों पर ध्यान न दें, उनका परिमार्जन करें और अपनी सफलताओं को भी सामने रखें। लेकिन जो 2-3 चीजें मैं चाहता था और मैं नहीं करवा सका, वो यह है कि शिक्षा नीति का संबंध जन्म से मृत्यु तक होता है, केवल स्कूल, हायर एजुकेशन और संस्थागत रूप से नहीं होता है। सच पूछिए तो शिक्षा तो परिवार से शुरू होती है। शिक्षा का संबंध मातृभाषा से, और मातृभाषा का मैं एक ही डेफिनेशन समझता हूं, वो भाषा जिसे मां अपने बच्चों को दूध पिलाते समय सिखा दे, वो मातृभाषा है। अभी तक यही नहीं तय हो पाया कि इस देश की शिक्षा का माध्यम क्या हो।
विभिन्न सरकारों ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, ये न कहने का अवसर है, न कहने की आवश्यकता है। आप विज्ञ लोग हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी साफ है, जितना समय हम लोग भाषा सीखने में डालते हैं, उतना समय ज्ञान अर्जन में डालें तो ज्ञान की मात्रा और गुणवत्ता उतनी बदल जाएगी। ये सरकार इस दिशा में कुछ करने की कोशिश कर रही है, उसका मैं तुलनात्मक अध्ययन नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूं। लेकिन सही बात यह है कि आज भी औपचारिक रूप से सरकारें प्रचार कर रही हैं कि अंग्रेजी सीखने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मैं राज्यों का नाम ले सकता हूं जहां राज्यों ने नीति के रूप में कहा है कि अब मैं तो दर्जी हूं, लेकिन मेरा लड़का अब कॉम्पिटिटिव हो जाएगा क्योंकि वो अंग्रेजी सीख रहा है। आप लोगों में से जो लोग टेलीविजन पर विभिन्न चैनलों को देखते होंगे, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। मैं उन राज्यों का नाम यहां लेना आवश्यक नहीं समझता हूं। शिक्षा नीति वही चलेगी जिस पर एक सामाजिक सामूहिक सहमति हो। वो नीति ही अभी नहीं ग्राह्य हो सकी है। आप लोग मेरे परिवार से परिचित होंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि परिवार पटना में रहा। मेरे पिता आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा वहां के ज्ञात नाम हैं, और उनके दिवंगत हो जाने के कई दशकों बाद भी उनको जानने वाले, जैसे वर्तमान मुख्यमंत्री ही उनके छात्र रहे हुए थे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो बात मैं कहने लगा वो ये कि पटना में भी जो प्रतिष्ठित स्कूल रहे, वो स्कूल इसलिए प्रतिष्ठित रहे क्योंकि उनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। मैं विदेश से लौटा जब मैं 7 साल का था और अंग्रेजी स्कूल में गया, और अंग्रेजी स्कूल में जाने का लाभ और अलाभ दोनों को झेला। वो कहने की यहां आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानसिकता यह है कि जो अंग्रेजी में बोले वो विद्वान है, जो हिंदी भोजपुरी मगही मैथिली में बोले वो अज्ञानी है। लक्ष्मण झा जैसे लोग बहुत हुए, लेकिन मैथिली को शिक्षा के माध्यम में कुछ विश्वविद्यालयों में स्थापित करने के अलावा कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे कि मैथिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राह्य हो गई हो, या और भाषाएं बिहार के ग्राह्य हुई हो। इसमें सरकार ने क्या किया मुझे मालूम नहीं है, शायद मेरे अज्ञ होने का यह दोष है। तो मैंने 2 बातें कही। शिक्षा जन्म से शुरू होती है और शिक्षा मां की गोद से शुरू होती है, और उसमें परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा, शिक्षा अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, नहीं तो ज्ञान से संपर्क होने में समय बहुत लगता है। मैं जो तीसरी बात कहना चाहूंगा, इस विश्व में जितने भी स्थापित देश हैं, चीन, रूस, इजराइल, जर्मनी, आप भी उन देशों को जानते हैं। किसी एक देश का नाम बता दीजिए जहां पर शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा नहीं है। आप लोगों में से जो लोग रूस गए होंगे पढ़ने के लिए, आपको पहले चीज कही गई होगी कि आप वहां रूसी सीखिए। आप जब चीन जाते हैं तो वहां चीनी सीखनी पड़ती है। आप जब जापान जाते हैं तो वहां जापानी सीखनी पड़ती है, और आप बड़े सहर्ष उसको सीखते हैं। भारत में आने के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ती। ये सब शिक्षा नीति की बात नहीं है, ये सब सामाजिक नीति की बात है, और इस पर हमको विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक जड़ों का
सींचना सही नहीं होगा, तब तक शिक्षा का प्रतिफलन सही नहीं होगा, और इस शिक्षा नीति पर इस पर विचार नहीं हुआ है। मुझे इस शिक्षा नीति से शिकायत नहीं है, लेकिन जिस संदर्भ में मैं पैदा हुआ, जिस संदर्भ में मैं आगे बढ़ा, जिस संदर्भ में आज जीवित हूं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज द सोर्स ऑफ ऑल प्रोग्रेस। आप जहां भी हों, जैसे भी हों, उसको सुधारने की और उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता तो होती ही है। इसलिए मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। जिस स्थिति में भी आप मुझे आमंत्रित कीजिएगा अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि उस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। इसलिए जो चौथी बात है वो ये कि मेरी टिप्पणियों को आप ये न माने कि मैं दोषारोपण कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सर, एक छोटी सी अनुमति चाह रहा था। एक सर कार्यक्रम है अभी 11 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मैं ऑफलाइन होके ऑनलाइन जुड़ जाऊंगा अभी आपसे। छोटी सी अनुमति चाह रहा हूँ। यू आर द बॉस। नहीं सर, योर परमिशन। थैंक यू, थैंक्स। ओके, थैंक्स। So national education policy is a continuous stream which will need to be improved successively and continuously, and that is a process which will need everyone's energy and time. That is my major thought to you. जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है, उसमें कई अवधारणाएं आई हैं, कुछ ग्राह्य हैं और कुछ पर अभी भी विचार की आवश्यकता है। जो बातें उसमें सही हैं, उसमें भारतीय शिक्षा की बात सर्वोपरि है, और भारतीय शिक्षा का माध्यम उसमें कहा गया है मातृभाषा। सही बात यह है कि देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय भाषाओं के विकास के लिए काफी कुछ हुआ, और इस बात की भी कोशिश की गई कि पुस्तकों की रचना भारतीय भाषाओं में हो। इसके लिए भारत सरकार ने आज से कई दशक पहले एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी कमीशन बनाया था, जिसका काम था अंग्रेजी की शब्दावली का भारतीय भाषाओं में रूपांतरण। इसलिए वो वोकैबुलरी अवेलेबल है। कई प्रांतों में ग्रंथ अकेडमियां स्थापित हुई जिन्होंने भारतीय भाषाओं में पुस्तकों को लिखने की कोशिश की। वो पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन कोई खास पुस्तकों का उपयोग हुआ हो ऐसा प्रमाण कुछ सामने नहीं आया। तो जो बात ध्यान में रखने की है कि दोषारोपण के बदले हम 75 साल के इतिहास में देखें कि कहां कहां वो मान्यताएं हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और कहां कहां वो मान्यताएं हैं जिसमें सुधार की जरूरत है, और कहां कहां वो मान्यताएं हैं जिनको और उसमें डालने की जरूरत है। मैं 3 खंडों में इसको विभाजित करना चाहूंगा। कोई भी विचार विमर्श एक मूल्यांकन से शुरू होता है, और मूल्यांकन में मैंने एक विहंगम रूप से देखने की कोशिश की कि आज हम कहां हैं और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब आपकी जैसी संस्था में इस पर विचार होता है, तो इट कैनॉट बी जस्ट एन ओकेजन फॉर एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज, देयर हैज टू बी स्पेसिफिक आउटकम्स। क्योंकि आपने समय निकाला, ऐसे समय में 10 बजे काम पर पहुंचना किसी भी जगह संयत्न की जरूरत है, जिसका निचोड़ भी कुछ निकलना चाहिए।
जो शिक्षा आज इस देश में चल रही है उसको हम लोग जब हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ाते हैं तो कहते हैं इट इज द इंग्लिश एजुकेशन। और आपने मैकॉले का नाम सुना होगा, वही इसके उपस्थापक थे, और उनकी नीतियों का ही अनुपालन पिछले कई शताब्दियों से होता रहा। उसकी आवश्यकता चर्चा की यहां नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इंग्लिश एजुकेशन का भी एक ट्रेडिशन है। यह करीब 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू होता है। Universities, as we know today, were founded in their present incarnation in Europe around the 14th and 15th century with the dictum Universitas Literarum. Universities ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर सम्यक रूप से विचार किया जाता है। Literarum, it is a point of the study of ideas. समय के अभाव में उसके क्रमिक रूप का मैं विस्तार यहां नहीं करना उचित समझता हूं। Universitas Literarum became Universitas Magistrorum, क्योंकि 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय देशों का प्रसार पूर्व में होने लगा, लैटिन अमेरिका में होने लगा, और उनको एम्पायर्स चलाने के लिए आदमियों की जरूरत थी, तो उसका रूप हो गया यूनिवर्सिटास मैजिस्ट्रोरम। यूनिवर्सिटियां वो जगह हैं जहां पर मैजिस्ट्रेट्स पैदा होते हैं, मतलब जो एडमिनिस्टर कर सकें। जब 20वीं शताब्दी आई तो उसका स्वरूप हो गया यूनिवर्सिटास एल्यूमिनोरम। यूनिवर्सिटियां वो जगह हैं जो अपने छात्रों के लिए होती हैं। ये क्रमिक विकास है इंग्लिश एजुकेशन का। और हम लोग जब उस पद्धति में डाले गए तो वो द्वैध का वक्त था, यूनिवर्सिटास मैजिस्ट्रोरम और यूनिवर्सिटास एल्यूमिनोरम का। वो आज भी चल रहा है। उसकी एक मानसिकता है, उसका एक सिद्धांत है, उसका एक विचार करने का तरीका है, और हम लोग उसका अनुकरण करते रहे हैं। यू कैन गो बैक टू द कोठारी कमीशन विच एक्सेप्टेड दैट सुओ मोटो। सही किया या गलत किया इसके विश्लेषण में आज पढ़ना पिष्ट पेषण है, बट दैट वाज द ट्रेड ऑफ पॉइंट, दैट वाज द टेक ऑफ पॉइंट, एंड दैट इज द एजुकेशन थ्रू विच the over 1,000 universities which exist in this country are following. थोड़ी बहुत कोशिश हुई है भारतीय पद्धति के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने की, लेकिन उनकी न वो सामाजिक प्रतिष्ठा है, न उनके लिए वो मांग है जो कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के यूनिवर्सिटीज के लिए है। आपको ही अपने परिवार के लोगों को भेजना हो तो आप अपने परिवार के छात्र को गुरुकुल में नहीं भेजेंगे, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे जो अंग्रेजी पद्धति से चलता हो। और उससे मेरा विवाद नहीं है, वो इसलिए होता है क्योंकि नौकरियां उस तरह की शिक्षा से प्राप्त होती हैं, इसलिए विवाद का विषय नहीं है, इट इज अ गिवन। प्रश्न यह उठता है कि हम आज से उससे कितने दूर तक आगे बढ़ सकते हैं, कितने दूर तक उसको परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बारे में मैं 3-4 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आप चाहें तो इस पर बाद में विचार कर सकते हैं। पहली चीज जो इस विधा में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि भारतीय वांग्मय में भारतीय शिक्षा पद्धति बड़ी ही विकसित और समृद्ध थी। तार कहीं टूट गया, और यह तार टूटा 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास, क्योंकि प्रमुखता उन देश के हिस्सों को मिलने लगी जो अंग्रेजी शासन के सीधे संपर्क में थे। मुझे याद है मैं 1972 में इंग्लैंड में था, और वहां से जब लौटा तो डॉक्टर के.एन. राज वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और हिस्ट्री के करिकुलम का रिवीजन था, और उसके रिवीजन में यह पता चला कि जो हिस्ट्री में पढ़ाई जाती थी, दीज वर द नरेटिव्स ऑफ
ब्रिटिश इंडिया रजवाड़ों का और वहां के स्थानीय प्रशासन पद्धति का जिक्र तक नहीं था, जबकि भारत में लोकल गवर्नमेंट्स की एक समृद्ध परंपरा रही है। केवल 2 राजवाड़ों का मैं नाम लूं, बड़ौदा और ट्रावनकोर कोचिन। दे वर वेरी डेवलप्ड, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट्स, लेकिन इतिहास के करिकुलम में उनका कहीं जिक्र भी नहीं था। तो जो पढ़ाया जाता था वो अंग्रेजों की शिक्षा का महिमा मंडन था। वो स्थिति अब काफी सुधारी गई है और कई जगह भारत की समग्रता का प्रवेश करिकुलम में हुआ है, लेकिन पद्धति शिक्षा की अभी भी अंग्रेजी ही है। तो पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षा के स्वरूप के बारे में विचार आवश्यक है, क्योंकि जब तक नौकरियों का संपर्क इंग्लिश एजुकेशन से रहेगा तब तक यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए उसी तरह की भीड़ रहेगी जैसे कि आज है। तो यदि आप शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशंस पर विचार करना पड़ेगा, जहां तक अभी शिक्षा नीति पहुंची नहीं। आप यदि आईआईटी में नौकरी करना चाहते हैं, यदि आप मेडिकल कॉलेज में एज टीचर जाना चाहते हैं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पद्धति में जाना चाहते हैं, तो हर जगह रिक्वायरमेंट इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के डिग्रीज की ही है। इसको सुधारने में समय लगेगा। भारतीय शिक्षा को विकसित करना समय साध्य चीज है और ये खुशी की बात है कि उस दिशा में कुछ काम हो रहा है। जैसे कि आपको बताएं, हमारे यहां जो शिक्षा पद्धति है उसमें एक ही साथ इतिहास, भूगोल, गणित, भाषाएं सब पढ़ाए जाते हैं, जबकि गुरुकुल में जब आप जाते थे तो 1 वर्ष की कार्यावधि में एक ही विषय पढ़ाया जाता था। 1 साल केवल गणित पढ़ाया जाएगा, 1 साल केवल भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, 1 साल केवल भूगोल पढ़ाया जाएगा। करिकुलम का ढांचा ही दूसरा था। आप लोगों में से बहुतों को यह पता भी नहीं होगा। तो उस एजुकेशन सिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए इंस्टीट्यूशनली उनको एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, जो कि अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो जो निष्कर्ष मैं आपके सामने आपके विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं वो ये कि ये परिवर्तन इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन से इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन करने में कई दशक लगेंगे, संभव है कि शताब्दी भी लग जाए, लेकिन उस दिशा में यदि हम शुरू भी नहीं करेंगे तो उसका कभी समापन ही नहीं होगा। तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो शिक्षा का माध्यम क्या हो और दूसरा शिक्षा का स्वरूप क्या हो। ये राजनीति की चर्चा की बात नहीं है, ये व्यवहार की बात है। और यदि ये करना होगा तो इसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से करनी होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का सारा ध्यान, तो मैं कहने से हिचकूंगा, बट द प्रिडोमिनेंट एम्फेसिस ऑफ यूजीसी इज ऑन परपेचुएशन ऑफ इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जब तक देश का माहौल इसके लिए तैयार नहीं होगा कि भारतीय शिक्षा भारतीय परिवेश के लिए, भारतीय परिस्थिति के लिए, भारतीय माध्यम से, भारतीय पद्धति से हो, तब तक इसका अनुपालन समय साध्य होगा। शायद आपकी पीढ़ी में कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, ये तो इस पर निर्भर करता है कि आप इसके लिए कितनी ऊर्जा देते हैं। तो भारतीय शिक्षा नीति 220 में जो कुछ कदम उठाए गए हैं वो सही दिशा में हैं, लेकिन उसको क्रमिक रूप से ही नहीं, उसको तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
संभवतः मैं इसकी दिलचस्पी आप लोगों में से बहुतों को न हो, क्योंकि आप ऑलरेडी उस राह पर पहुंच चुके हैं जो कि अंग्रेजी सिस्टम के माध्यम से निकलता है। इसलिए जो लोग इंग्लिश सिस्टम से पढ़ चुके हैं उनके लिए द्वैध की आवश्यकता होगी। वो पहले समझे कि भारतीय शिक्षा पद्धति क्या है, और इसके लिए कोई व्यवस्था अभी तक हुई नहीं है। पहला काम जो करने की कोशिश हो रही है, और उसके लिए सरकार को साधुवाद, शिक्षा की पद्धति भारतीय भाषाओं को करने के लिए बहुत बल दिया जा रहा है और उस दिशा में काम भी हो रहा है। और ये आवश्यक है कि भाषा का माध्यम भारतीय बनाया जाए, जिसका प्रमाण मैंने दे दिया। कोई भी देश जिसने उपलब्धियां प्राप्त की हैं अपने शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं रखे हुआ है, एक भारत को छोड़ करके। इजराइल ने तो हिब्रू को अपने देश की भाषा डिक्लेयर कर दिया। यहां तो अभी भी विवाद चल रहा है कि संस्कृत जीवित भाषा है या मरी हुई भाषा है। हिब्रू बोलने वाले कितने लोग थे जब इजराइल बना 1949 में? इस पर उनको विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इजरायली आइडेंटिटी के लिए सब काम हिब्रू में होना था। और आज देखिए इजराइल कहां है और हम कहां हैं। इस बात के प्रमाण के लिए मुझे एन्यूमरेशन देना पड़े, इसकी तो आवश्यकता ऐसे ऑडियंस को नहीं होनी चाहिए। तो आप मान के चलिए कि सफलता की कुंजी भारतीय भाषाओं में ही है, और इसको यदि आप रागात्मक रूप से देखेंगे तो केवल अपना अहित करेंगे, उन पंक्तियों की कतार को बढ़ाएंगे जिसकी भीड़ बढ़ती ही जाती है और नौकरियां उतनी हैं नहीं। तो हम अपनी कुंठाओं को एक सामाजिक रूप देने की व्यवस्था कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, कभी कभी आवश्यकता होती है ऐसी संस्था में इस तरह की चर्चा में अपनी बात स्पष्टता से कहने की। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को प्री स्कूल स्टेज पर भी सोचना पड़ेगा कि भारतीय संस्कारों की अवधारणा को कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। हम लोग अनावश्यक धर्म को इतना बल देते हैं कि ये धर्म ये है, वो धर्म वो है, ये हमको अलग करता है। कोई धर्म किसी को अलग नहीं करता है। इस पर काफी मंथन हो चुका है, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ आवश्यक नहीं है। यह देश एक है, एक देश बहुत माने में है। मैं आपको कुछ प्रमाण दे दूं। किसी भी समाज में चले जाइए, महिलाओं की स्थिति वही है जो समाज क में है, समाज ख में है, समाज ग में है। Women are treated in a similar manner. मैं गुणवत्ता के रूप में नहीं कह रहा हूं कि अच्छा होता है कि बुरा होता है। The way the Muslim women are treated, the way the Hindu women are treated, the way the Christian women are treated is common. वहां पर कोई रिलीजन का फर्क नहीं पड़ता है। अब वो सही है या गलत है, इसके विचार विमर्श पर यहां आवश्यकता नहीं है। The way children are brought up is similar across religions. ये देश सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक रहा है जिसका संबंध धर्म से कुछ है ही नहीं। बल्कि सही बात यह है कि रिलीजियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी में भी फर्क है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द सेम थिंग एज रिलीजियोसिटी। रिलीजियोसिटी में नेम टेम होता है, स्पिरिचुअलिटी आत्मिक मंथन होता है। और इस देश का हर व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से स्पिरिचुअली एक है। हर कोई अपने प्रारब्ध पर विश्वास करता है। भारतीयता के लक्षण हैं। इस तरह से भारत आज जीवित है, किसी की कृपा से जीवित नहीं है। और भारत जीवित रहेगा जिस तरह की 10,000 11,000 साल की ज्ञात परंपरा से हमको वाकिफ है। इसलिए मैं भारत के अस्तित्व
और भविष्य के बारे में आश्वस्त हूं। आप चिंता कीजिए अपनी पीढ़ी के बारे में, आप चिंता कीजिए अपने परिवार के बारे में, आप चिंता कीजिए अपने बारे में। नहीं तो पंक्तियों में खड़े रहने के लिए तैयार रहिए, जैसे कि आपको ऑलरेडी आदत हो गई होगी। विदेश जाने के लिए तैयार रखिए, बहुओं को खोजने के लिए और दामादों को खोजने के लिए ग्रीन कार्ड खोजिए। पता लगाइए कि आपके समधी अमेरिका में बसे हुए हैं कि इंग्लैंड में बसे हुए हैं, और उन परिवारों में शादी कीजिए और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका लड़का किस विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने से किसी की प्रतिष्ठा हुई हो तो नहीं, लेकिन उसमें विनयशील गौतम जरूर है, क्योंकि विनयशील गौतम पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हुए हैं, और ये डंके की चोट पर कहना मुनासिब है। जब तक अपने परंपरा और अपने संस्कारों में गर्व का बोध नहीं होगा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस का कोई खतरा हम लोगों के ऊपर मंडराएगा नहीं। बाकी चीजें प्रचार प्रसार की हैं, वो तो रोज आप चैनल्स में देखते ही हैं, और अखबारों में कितने तरह के अखबार हैं आप जानते होंगे, उसके लिए आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने कुछ उद्गार आपके सामने रख सकूं, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। स्वाभाविक है कि इस अवधि में सब कुछ आदमी नहीं कह सकता है, लेकिन मैंने जो बातें कहने की कोशिश की आपके सामने, वो केवल यह है कि इंग्लिश एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन की परंपराओं को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये बताने की कोशिश की कि प्रगति तो इंग्लिश एजुकेशन के माध्यम से भी हो सकती है, लेकिन उसी गति से होगी जिस गति से हो रही है। उसका आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और इस शिक्षा नीति में इसके लक्षण दिख रहे हैं। ये शुभ बात है। तीसरी चीज जो मैंने कही कि जो सहज रूप में न सही लेकिन प्रयत्न से हो सकती है, अपनी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने भाषा में सोचिए और अपनी अभिव्यक्ति कीजिए, मुंह टेढ़ा करके। स्पीकिंग इन an Oxford accent or an American accent will not be giving you a recognition as a scholar. मैं भी मुंह टेढ़ा करके बोल सकता हूं, और यकीन मानिए जहां आवश्यकता है किसी से कम मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में पढ़ाया हुआ हूं, और कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। लोगों ने नहीं तो मेरा कई रूपों में कई आरतियां उतारी होती है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि यदि कुछ मौलिक देन करनी है तो अपनी भाषाओं में ही हो सकता है। यदि आप समझ लीजिए सहज रूप से तो आपके हित में है, नहीं तो भविष्य आपको समझा ही देगा। और जो दो अंतिम बातें मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट की परिकल्पना हुई थी, इस मकान में अनुग्रह बाबू रहते थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो बिहार प्रांत के पहले वित्त मंत्री थे, और उनके मरणोपरांत इसको ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट करार किया गया। ये बिहारी वाग्मिता और अस्मिता की निशानी के रूप में था। किसी समय यहां जयवल्लभ सिन्हा नाम के एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक रहा करते थे, और उस पीढ़ी के लोगों से मैं परिचित हूं, क्योंकि एक वक्त मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली आने के बदले ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट में ही शिक्षक हो जाऊं। लोगों ने कहा कि बेटा तुम यहीं रह जाओगे, और उस वक्त आगे बढ़ने की इच्छा मेरे मन में उतनी ही थी जितना कि आपके मन में आज है। तो मैं दिल्ली चला आया। मैंने सही किया या गलत किया ये तो वक्त बताएगा। इसलिए पटना के बारे में मेरी ललक है। आज मैं जो भी हूं पटना की वजह से हूं, और ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट उसका प्रतीक है। A.N. Sinha Institute is not just an institute, it is a philosophy. उस फिलॉसफी को जीवित रखना आप लोगों के हाथ में है। इसलिए भारतीय शिक्षा के भविष्य के लिए we need more institutes like A.N. Sinha Institute which espouse that philosophy and who will take it forward. मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।
चूंकि धैर्य की भी सीमा होती है और दूसरे की बात सुनने से ज्यादा सुरुचिपूर्ण होता है अपनी बात कहना। आपने इतने देर तक धैर्य से सुना। पूरे हॉल में एक ही व्यक्ति मुझे दिखी जो कि नियमित रूप से जम्हाई लेती ही रही। उनकी जम्हाई में कोई व्यवधान नहीं आया, शायद वो थकी हुई थी। बाकी ने तो जग करके ही सुना। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और देखिएगा कि किनको जम्हाई आ रही थी और कितनी आई और कितने रूपों में आई। तो यदि सुनने में सहज रूप में मेरा रिजेक्शन इतने ही परसेंटेज से हुआ जितना जम्हाई से लगता है, तब तो मेरा अपना ख्याल है कि आप में से अधिकांश ने जगे ही हुए सुना है मेरी बात। एक दो ने पानी पिया, एक दो ने आपस में बातें की, एक तीन चार ने जगह बदली। मैं शिक्षक हूं, आजीवन ऐसे ही ऑडियंसेस को एड्रेस करता रहा हूं। मैं तो लोगों की आंख में आंख डाल करके उनकी मानसिकता को समझने की शक्ति रखता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि आप लोगों ने इतना सद्भाव दिखाया, लेकिन सही सद्भाव में वो मानूंगा जो कि कार्यान्वयन में स्पष्ट हो। मैं चाहूंगा कि मेरे वक्तव्य के बाद आप इस पर विचार करें और अपनी सीमा और कार्य पद्धति में देखें कि कहां तक इन बातों को आगे बढ़ाया जा सकता है, कहां तक इनका अनुपालन किया जा सकता है। तब मुझे लगेगा कि मैंने जो समय आपके साथ दिया वो सार्थक था। संपर्क में रहिएगा। आपसे संपर्क में रहना मेरे लिए जीवनदायक होता है। शुभस्ते से पंथाना। नमस्कार। So thank you so much for sharing such wonderful thoughts with us. Have a great day. Thank you, sir. Thank you for your thoughtful address, sir. Thank you. We'll try to, हम लोग जो आपने विचार रखे हैं इन पर हम लोग विचार करेंगे और आने वाले समय में जहां भी हम लोगों को मौका मिलेगा और हम लोग भी अपना इस तरीके से जो है मातृभाषा पे जिस तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके या उसको आगे बढ़ाया जा सके, उस पर हम लोग भी जो है प्रयास करेंगे। लेकिन आपने सही किया है कि हम लोग एक ढांचे में ऑलरेडी ढल चुके हैं, लेकिन हाँ, ढांचे में डलने के बावजूद भी जो चीजें जो छूट गई हैं शायद उनको हम देख पाते हैं कि शायद ये चीजें अगर इस तरीके से हुई होती तो शायद कुछ और ही इसका परिणाम होता। इन चीजों को हम भी शायद आपने जो विचार रखे हैं उससे समझ पा रहे हैं। और जो भी आपने रखा है विचार, यहाँ जो भी ऑडियंस है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो उसको समझेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ उन लोगों को मौका मिलेगा इस तरह के विचारों को जो है आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक लोग इन चीजों को जानेंगे नहीं, इनके बारे में उनको उस तरीके से ज्ञान नहीं होगा कि इसका क्या फायदा हम लोगों को मिल सकता है भविष्य में, और हमारी भविष्य की पीढ़ी जो है किस तरीके से आगे बढ़ सकती है और हमारा देश किस तरीके से एक विकसित भारत बन सकता है, तब तक शायद इन चीजों का अनुसरण और अनुपालन नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी हम चाहेंगे कि आप हम लोगों के समक्ष आते रहें और इस तरह के विचार हम लोगों के समक्ष रखते रहें, ताकि हम लोगों की जो है उस दिशा में आगे सोच सकें और लोगों को आगे जो है प्रेरित कर सकें और शिक्षित कर सकें। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आपके सहृदयतापूर्ण टिप्पणियों के लिए मैं आभारी हूं। मैंने शुभस्ते पंथाना की बात कही थी। आपका मार्ग प्रशस्त हो, उसके लिए मैं एक ही विचार पाद टिप्पणी के रूप में डालना चाहूंगा। This country should be seriously considering extending on period of dualism of two systems of education existing parallelly. जो पद्धति है वो तो चलती रहेगी, उसके साथ एक पैरेलल पद्धति सेटअप करने की जरूरत है जिससे भविष्य की तैयारी की जाए। ये करणीय है, ये संभव है यदि हम कर्मठ तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल, इट इज डूएबल एंड इन माय ओपिनियन वर्थ अटेम्प्टिंग।
ऐसे किसी भी संपर्क की तरह, this is not the end, but this is an important step in that journey. Thank you for being kind. Thank you for giving me the opportunity.